Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope that you all are fine and safe at your home. Today is 18th of May 2021, day is Tuesday, and you're having your science lesson with me. The chapter that we are reading these days is year number 5 about environment, and our today's topic is about polar regions. But before we start a new topic today, let us revise that what we have studied in our previous video of science. So can you tell me what was the topic that we had discussed in our previous video? Well done, Abdullah. It was about the types of habitat. We have studied like what is a habitat. It's a place or a home for living things. Wherever a living thing is living or growing, it is the home for that thing. और उसको हम हैबिटेट कहते हैं. ठीक है. वी हैव स्टडीड द हैबिटेट कैन बी बिग, इट कैन बी स्मॉल, इट कैन बी हॉट, इट कैन बी वेरी कोल्ड. जिस टाइप का एनिमल होगा उसी टाइप का उसका वे ऑफ लिविंग होगा और जिस जगह पे वो रहते हैं उसको उसका हैबिटेट कहते हैं. ठीक है. फिर हमने ये भी पढ़ा दैट दे आर हैविंग 4 टाइप ऑफ हैबिटेट, 4 डिफरेंट मेजर टाइप ऑफ हैबिटेट लाइक डेजर्ट्स, rivers, ocean, lakes, forest, and then we have studied about the polar region. Yesterday we have discussed in detail about the deserts. Today we will be talking in detail about the polar region. So let's get started with our today's lesson. As I have written the topic on the board, polar regions. Now what are polar regions? Can you tell me if you have any idea about the polar regions? Okay, let me tell you. Polar regions are actually the large area of land that are surrounded by 2 poles. If I draw a line on the board and let you know that I have drawn a rough land area, ये जो आपको इस तरह की shapes नजर आ रही हैं, these zigzags, these are actually the map of any country or any place. अब आपने क्या अंडरस्टैंड करना है, आपको पता है वी आर हैविंग द 4 डायरेक्शन ऑफ अर्थ की 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. तो जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं इनको हम पोलर रीजन्स कहते हैं. ठीक है. और आपको पता है कि द प्लेस फ्रॉम वेयर द सन इज़ राइजिंग इसको हम ईस्ट कहते हैं और जहाँ पे सन सेट होता है उसको हम वेस्ट कहते हैं. ठीक है. एंड द अपर वन इज़ नॉर्थ एंड लोअर वन इज़ द साउथ. तो दीज आर द 2 पोल्स और इनको हम साउथ और नॉर्थ पोल कहते हैं. ठीक है. अब जो नॉर्थ पोल है उसको हम आर्कटिक एरिया कहते हैं. लेट मी राइट द स्पेलिंग. आई एम राइटिंग ऑन द लेफ्ट साइड. So the side on the north pole will be said as Arctic और जो south pole पे उसको हम Antarctica कहते हैं. ठीक है. So these are the 2 sides to which we say the polar regions. Okay, now let's talk about them. They are very cold area. ये बहुत ज़्यादा cold area होता है. यहाँ पे बहुत extreme cold temperature होता है. Also they are very dry area. आपको पता है जो snow है वो dry होती है और यहाँ पे coldest temperature होता है और ये dry land area है. Dry land area है but it's very cold and according to the temperature. They are also considered as desert. जैसे आपको पता है डेजर्ट्स में भी सैंड होती है बट बिकॉज डेजर्ट्स में हीट होती है, हाई टेम्परेचर की वजह से जो सैंड है वो हीट अप हो जाती है और टेम्परेचर हाई हो जाता है. बट पोलर रीजन डेजर्ट्स का ऑपोजिट है. हाउ? यहाँ पर आइस होती है, स्नो फॉलिंग होती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है बट होता सब कुछ ड्राई है. तो इसकी ड्राइनेस की वजह से हम इसको डेजर्ट से रिलेट करते हैं. ठीक है. और आपको पता है जैसे डेजर्ट्स में सारी जो लैंड है वो सैंड से कवर हुई होती है, पोलर रीजन्स में ऑल द लैंड इज कवर बाय द स्नो, वो स्नो से कवर हुई होती है. ठीक है. So let's recall it once again. We have studied the second habitat is polar region. Polar regions we are deciding on the basis of the direction of the earth. अर्थ को जब हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. नॉर्थ और साउथ के जो पोल्स हैं उनको हम पोलर रीजन्स कहते हैं. द वन दैट इज ऑन द नॉर्थ पोल उसको हम आर्कटिक कहते हैं एंड द वन दैट इज ऑन द साउथ पोल उसको हम एंटार्क्टिका कहते हैं. ऑल्सो आई हैव शेयर्ड विद यू दे आर रिजेंबल्ड लाइक अ डेजर्ट बट डेजर्ट में जैसे सैंड होती है यहाँ पर स्नो होती है. डेजर्ट्स आर ऑल्सो वेरी ड्राई
the polar regions are also very dry. The difference is about the temperature. यहाँ पे cold temperature होता है, -डिग्रीज में होता है, और वहाँ पे extreme high temperature होता है, ठीक है. Now let's see, जैसे हमने deserts में animals के बारे में discuss किया था. Can you tell me like what are the type of animal and plant that can stay in the desert? Well done, Asharim. Camels and cactus like animals and plant can stay in the desert. Why? Because camel भी जो है वो water के बगैर काफ़ी देर तक stay कर सकते हैं. Same goes for the plants. Cactus भी water के बगैर काफ़ी देर तक अपने आप को grow करवा सकते हैं, like उसका growth process continue रहता है. So now we'll see that polar region में किस टाइप के animals रहते हैं. Just imagine कि अगर extreme cold temperature है तो यहाँ पे किस टाइप के animals रहेंगे. Those that are having the thick skin, जिनकी बहुत ज़्यादा thick skin होती है. Also some that are having the fur और feathers, जिनके fur होता है body पर ताकि उनकी body को coldness से secure कर सके. See, I have mentioned the characteristic. Those animals that can stay in the polar regions, they must have the thick feathers. They must have a lot of fur on their skin. Also, they should have the layer of fats. इनकी body पे जो fats हैं, they should have good enough quantity as compared to the animals that are living in the deserts. जब एनिमल्स में ये वाले करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दे आर एबल टू सर्वाइव इवन इन द कोल्ड टेम्परेचर. और जो पोलर रीजन्स में एनिमल्स रहते हैं, दे आर कोल्ड ब्लडेड. What are the cold blooded animals that can change their body temperature? अल्लाह ताला ने इनमें क्वालिटी रखी होती है कि अपनी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं. अगर एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर है तो उनका बॉडी का जो टेम्परेचर है, इंटरनल ब्लड टेम्परेचर जो है वो ऑपोजिट हो जाता है, वो हॉट हो जाता है, ताकि वो आउटसाइड जो इन्वायरमेंट है उसके साथ बैलेंस कर सकें अपने आप को, ठीक है. सो व्हाट वी हैव स्टडीड इन पोलर रीजन्स, द एनिमल शुड हैव थिक फीदर, लॉट्स ऑफ फर ऑन देयर स्किन एंड हैविंग द लेयर्स ऑफ द फैट्स. उनकी जो स्किन है वो हार्ड होनी चाहिए, ठीक है. नाउ as you get to know about the characteristic, can you think like what should be the animals that can live there? You have guessed it very right. The polar bear, penguins, these are, or arctic fox, these are the animals that can live in the polar areas, क्योंकि इनमें ये सब qualities होती हैं और उस टेम्परेचर को bear भी कर सकते हैं, ठीक है. So this was all about the polar regions. The second habitat that we have studied, जैसे मैंने आपको deserts के बारे में जब पढ़ाया था, and I have shared an interesting information with you कि world biggest sandy desert is Sahara Desert that is present in Africa. अब जैसे हम पोलर रीजन्स की बात कर रहे हैं, कोल्ड एरियाज़ की बात करें, तो देर इज़ एन अदर लाइक अंटार्कटिका इज़ द ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ. अंटार्कटिका जो है वो ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट है अर्थ में. इसमें कोई ज़मीन नहीं होती है, इसकी पूरी जो ज़मीन है उसको आइस ने कवर किया होता है. तो दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन. एंटार्कटिका इज़ द ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ, और इसमें कोल्ड टेम्परेचर होता है. इतना ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर होता है और इतनी ज़्यादा स्नो फॉलिंग होती है कि जो ज़मीन है वो ऐसे कंसिडर किया जाता है कि इट्स नॉट हैविंग द लैंड, कि ज़मीन है ही नहीं है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आइस और स्नो है. इतनी ज़्यादा लेयर्स होती हैं. सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट एंटार्कटिका इज़ द ड्राइएस्ट कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट. Okay, let's talk about the rainforest. Rainforests are actually the opposite of deserts and polar regions. ये deserts और polar regions से बिल्कुल totally opposite होते हैं. They are having a lot of trees inside them. हम rainforest forest कहते हैं उसे, जिसमें बहुत ज़्यादा trees होते हैं. We are having some natural forest, also we are having some artificial forest. जैसे हमारे पाकिस्तान में जो छांगा मांगा है वो artificial forest है, वो natural नहीं है. हमने खुद प्लांट्स ग्रो करके उसको फॉरेस्ट बनाया हुआ है, ठीक है. उसके अलावा जो रेन फॉरेस्ट है इसमें बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं. इट्स ऑल्सो अ हैबिटेट ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल्स. जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, वहाँ स्टे करें, वहीं ग्रो करते हैं, वहीं पे सर्वाइव करते हैं.
और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हमारी इस पूरी वर्ल्ड को अगर हम कंसिडर करें तो हाफ से ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो फॉरेस्ट में रह रहे होते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट इज़ हैबिटेट ऑफ मैनी मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे लिविंग थिंग्स का जो हैबिटेट है, बहुत सारे प्लांट्स का हैबिटेट है, बहुत सारे इंसेक्ट्स का हैबिटेट है, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का हैबिटेट है, बहुत सारे बर्ड्स का हैबिटेट है। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, हमें फॉरेस्ट को, प्लांट्स को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. So this was the third habitat that we have studied. Before this we were talking about the polar region, that was the second one. अब फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट की जब हम बात करते हैं, वी आर हैविंग 4 टाइप्स ऑफ जोन्स. रेन फॉरेस्ट में 4 टाइप्स की जोन्स हैं दैट दे हैव डिस्क्राइब टू यू इन द बुक्स. इफ़ यू सी पेज नंबर 37, नंबर 1 जोन इज़ कॉल्ड इमर्जेंट जोन, जिसमें बहुत बड़े बड़े साइज़ के प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, उसको इमर्जेंट जोन कहते हैं. नंबर 2 पे कैनोपी जोन होते हैं जो उनसे थोड़े से छोटे होते हैं. नंबर 3 पे अंडर स्टोरी, और जो लास्ट पे ग्रास और हर्ब्स वगैरह होते हैं उनको हम फॉरेस्ट फ्लोर कहते हैं. तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट फॉरेस्ट इज हैविंग 4 zones: emergent, canopy, understory and forest floor. Then let's talk about the last and the 4th habitat that they have discussed with you in the book: sea, rivers and ocean. We are having the 4th type of habitat, that is sea, rivers and ocean. अब आपको इन वर्ड से देख कर ही पता चल जाएगा कि लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर एनिमल्स. ऑब्वियसली सी, रिवर्स एंड ओशन में वाटर एनिमल्स और प्लांट्स स्टे करते हैं. तो वो सब प्लांट्स और एनिमल्स जो वाटर में सर्वाइव करते हैं, पानी में ज़िंदा रहते हैं, वहीं पे ग्रो करते हैं, वाटर उनका हैबिटेट होता है. सो दैट इज़ द 4th हैबिटेट ऑफ आवर इन्वायरमेंट. As you see, like some of the largest animal of the world like shark, dolphin, they are living in the water, and some of the smallest जैसे microorganisms होते हैं, even we are not able to see them, वो भी water में survive कर रहे होते हैं. और आपने देखा है कि बहुत सारे जो animals हैं that they can stay in the water also on the land, like alligator, frog, turtle, they are also living in the water. और कुछ प्लांट्स होते हैं जो वाटर के अंदर भी सर्वाइव करते हैं और वाटर के साइड पे जो बाउंड्री होती है वहाँ पे भी सर्वाइव करते हैं. आपने देखा होगा समुद्र के साथ साथ भी प्लांट्स होते हैं. और अगर किसी रिवर के साइड पे देखो, रिवर्स आर लाइक, एक रिवर इस तरह होता है लाइक उसकी एक डायरेक्शन होती है. अभी मैंने बिल्कुल स्ट्रेट बनाया जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड. ये इस तरह जिगजैग भी होता है किसी, जैसे हमारे लाहौर में रिवर रावी है तो आपने देखा उसके साइड्स पर प्लांट्स लगे होते हैं. तो कुछ प्लांट्स का हैबिटेट ये भी होता है कि वो वाटर के अंदर तो नहीं रहते बट दे आर लिविंग ऑन द साइड्स ऑफ द वाटर. So this was the last one habitat that they have shared in your book. This is all about today. We have studied about the types of habitat. One thing that I want to share with you, habitat can be natural or man-made. Natural भी हो सकता है, man-made भी हो सकता है. We are having 2 types of habitat, natural and man-made. Natural habitat वो होते हैं that are naturally made, जिनको अल्लाह ताला ने naturally बनाया होता है, जैसे कि rivers, जैसे कि sea, ocean और like water से related जो ये natural हैं, ठीक है. Deserts natural हैं. कुछ हैबिटेट ऐसे होते हैं जो इंसान ने खुद बनाए होते हैं, जैसे हम कुछ फॉरेस्ट बना लेते हैं. वो जैसे भी मैं आपको बता रही थी, छांगा मांगा जो फॉरेस्ट है लाहौर में, दैट इज़ द मैन मेड आर्टिफिशियल फॉरेस्ट. तो वो हम खुद हैबिटेट बना लेते हैं. जैसे हम कुछ घरों में भी कुछ ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं जिसमें कोई एनिमल्स या प्लांट्स ग्रो करते हैं. जैसे अगर किसी ने घर में रैबिट्स रखे होते हैं तो रैबिट्स को अगर हम अपने घर में रखते हैं तो दे क्रिएट देयर ऑन हैबिटेट. वो ज़मीन के अंदर खुदाई करके खुद से अपना घर बना लेते हैं. तो जो चीज़ें हम एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं वो मैन मेड हैबिटेट होता है, और जो नेचुरल होता है, जो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, वो नेचुरल हैबिटेट में कंसीडर होता है. ठीक है. यू आर हैविंग 1 क्वेश्चन रिलेटेड टू इट, सो यू हैव टू टेक आउट योर नोटबुक, मेक द पेज रेडी, राइट द टॉपिक एंड द यूनिट नंबर, एंड देन यू हैव टू डू द क्वेश्चन. Here you go with the question related to the topic. What is the question is, what is the difference between natural habitat and man-made habitat? So you will be writing in the answer. A habitat that is naturally created by Allah Almighty is called natural habitat, जो अल्लाह ताला ने खुद से इस दुनिया में बनाया हुआ है.
जैसे कि सी है, जैसे और ओशंस हैं, डेजर्ट्स हैं, माउंटेन्स हैं, दीज ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड बाय अल्लाह। तो जो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो उनका नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है, जो अल्लाह ताला ने बनाया है। मैन मेड हैबिटेट इज़ अ हैबिटेट दैट इज़ मेड बाय मैन, उसको हम मैन मेड हैबिटेट कहते हैं। दिस इज़ व्हाट यू आर सपोज टू डू on the notebook. Question number 3, 1 and 2 question we have done yesterday, जो आपने habitat के बारे में बताया था और आपने बताया था कि आपके घर में कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके साथ environment शेयर कर रहे हैं। This is the third question. Now the fourth question is very interesting. It's about like tell the name of all the type of habitat that you have studied in this chapter. So can you tell me the name of the habitat that you have studied? Okay, I'm giving you a few seconds to think about the answer. I'm asking you that how many types of habitat you have studied in this lesson. So you were thinking very right. We have studied about the 4 different types of habitat. You have to write the question on the notebook. Write the name of different types of habitat, and in the answer you have to write deserts, polar regions, rainforest, sea, rivers and ocean. They are the four type of habitat that we have discussed in very detail in this chapter of environment. Okay, so this is all about today that you are supposed to do. We have gained the concept about the type of habitat, and we have also discussed all of them in detail and also have done the written work on the notebook. Next in your video, in your science lesson, we will be talking about like how we can keep our environment clean and how we can protect our environment and the things that are sharing the environment with us. ठीक है, so this is all about today. आपने नीट क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी कॉपी पर काम करना है. मेक श्योर यू मेंशन द डेट एंड द डे. Also draw the margin lines and draw the diagram where I have asked you. So let's give a quick wrap up to our today's science lesson and then wind up the lesson. We have studied about the habitat. So who is going to tell me about like what is a habitat? Amina, you have to give the answer this time. Well done, you are giving the right answer. A habitat is a place where living things live and grow. एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है और ग्रो करता है, जो उसका घर कंसिडर होता है, उसको हैबिटेट कहते हैं. ओके, Aman, you have to tell like what are the different types of habitat we have discussed in this chapter? Good, we have talked about deserts, polar regions, rainforest, sea, rivers and oceans. Okay, can you tell me like Abdullah, can you tell me like what type of animals live in deserts? Good, the animals like camel and the plants like cactus, they are able to survive in the deserts because they are having the ability, natural उनकी ability है कि वो water के बगैर काफ़ी देर तक survive कर सकते हैं. ठीक है, so they can live in the deserts. और deserts में हमने पढ़ा कि in the day time they are having extreme high temperature because of the sunlight, और nights में they are having the cold night because वो जो sand है वो ठंडी हो जाती है और उसकी वजह से nights जो है वो cold होती हैं. ठीक है, फिर हमने पोलर रीजन्स में पढ़ा. वी आर हैविंग टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ, और इनको हम पोलर रीजन्स कहते हैं. नॉर्थ में जो होता है उसको हम आर्कटिक कहते हैं और जो साउथ में उसको एंटार्क्टिका कहते हैं. वी हैव ऑल्सो स्टडीड दैट एंटार्क्टिका इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट. एंड वी हैव ऑल्सो लर्न दैट आर्कटिक हैज़ नो लैंड, उसकी ज़मीन नहीं है, वो सारा का सारा स्नो से कवर हुआ होता है, इतनी ज़्यादा स्नो और आइस होती है वहाँ पर. रेन फॉरेस्ट में हमने पढ़ा दैट इट इज़ ऑपोजिट ऑफ पोलर रीजन्स एंड डेजर्ट्स. इसमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, और ये बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स और इंसेक्ट्स के लिए होम है, उनके लिए हैबिटेट का काम करता है. ठीक है, furthermore we have studied that our rainforest is having 4 zones: emergent, canopy, understory and the forest floor. Not forest floor, the forest floor is the last one. ठीक है, फिर हमने फोर्थ हैबिटेट में पढ़ा है कि इसमें सीज, रिवर एंड ओशन है, जो वाटर एनिमल्स हैं, वाटर प्लांट्स हैं, जो यहाँ पे रहते हैं. ठीक है, so we have also learned the difference between natural and man-made habitat. This is what you are supposed to do.
Watch the video carefully, gain the concept and then do the question answer. After that you are supposed to do the reading of page number 30 from page number 34 to 39. यहाँ तक के टॉपिक हमने क्लियर कर लिए हैं. यू हैव टू गो थ्रू द रीडिंग. आपको जहाँ कहीं कोई भी डिफिकल्टी फील हो रही है, यू हैव टू अंडरलाइन इट एंड यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप बाय सेंडिंग द वॉइस नोट और यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन द वीडियो लिंक. So take good care of yourself. Have a good time. See you in the next video with a new concept. Allah Hafiz.